नेहा बजाज and welcome to Zoom Live Show, entertainment का ultimate dose. Well, Bollywood से जुड़ी सभी updates, celebrities के fashion, fitness और style secrets, you get to see everything on the Zoom Live Show. And before we begin with top stories of the day, Zoom के YouTube channel को like, share and subscribe करना ना भूलें and do hit the bell icon to never miss an update. तो चलिए टॉप स्टोरीज में सबसे पहले बात करते हैं आराध्या बच्चन की। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के सेपरेशन रूमर्स पिछले कुछ समय से चल रहे थे। हालांकि उसके बाद दोनों ने एक साथ पब्लिक अपीयरेंसेस भी दिए और अब आराध्या बच्चन हैज मूव्ड टू हाई कोर्ट। व्हाई? बिकॉज ऑफ ऑल द मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन गोइंग वायरल ऑन द इंटरनेट। और क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। आराध्या बच्चन हैज मूव्ड टू द दिल्ली हाई कोर्ट टू रिमूव मिसलीडिंग ऑनलाइन कंटेंट अबाउट हर। एज पर बार एंड बेंच, द कोर्ट हैज इशूड अ नोटिस इन response to her plea for a summary judgment against the spread of false information about the 13-year-old. Legal notices have been sent to Google, Bollywood Times and other platforms. The next hearing is on March 17. Earlier in April 23, the Delhi High Court ordered Google to remove false videos that wrongly claimed Aradhya was critically ill or had passed away. In 2023, Justice C. Hari Shankar strongly criticized the spread of such content, saying every child deserves dignity and respect. He stated that sharing false information about a minor's health is completely unacceptable in law. The court also issued summons on the lawsuit to the YouTube channels including Bollywood Time, Bolly Pakoda, Bolly Samosa, Bollywood Shine and others, saying a prima facie case was made out of grant of interim relief to prevent further prejudice. इस डिसटेस्टफुल कंटेंट के खिलाफ ही आराध्या गई है हाई कोर्ट और अब देखते हैं कि इस सुनवाई में क्या कंक्लूजन निकल कर आता है। वैसे तो पिछले कुछ समय से अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के सेपरेशन रूमर्स भी चल रहे थे, जहां तरह तरह के स्पेकुलेशंस भी लगाए जा रहे थे। कभी नेटिजन्स ने कहा कि ऐश्वर्या की वेडिंग रिंग गायब है, तो उसी के साथ साथ लोगों ने यह भी कहा कि अभिषेक बच्चन ने वाइफ ऐश्वर्या राय बच्चन को बर्थडे नहीं किया विश। हालांकि आराध्या बच्चन के बर्थडे पर दोनों मौजूद थे और तो और आराध्या बच्चन के स्कूल फंक्शन पर भी दोनों मम्मी डैडी एक साथ पहुंचे। लेकिन पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर कई सारे स्पेकुलेशंस और कई सारा कंटेंट जो है वो फैल रहा है और शायद इसी के खिलाफ आराध्या बच्चन ने लगाई है गुहार। तो वहीं अब अगर बात करें आराध्या बच्चन की दादी जया बच्चन की, तो उनका एक और स्टेटमेंट हो रहा है वायरल, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि जहां महाकुंभ हो रहा है वो तो ऑलरेडी जगह कंटामिनेटेड है, वो पानी तो कंटामिनेटेड है। और हमेशा से हम जानते हैं कि जया बच्चन के स्टेटमेंट्स वायरल होते हैं, कभी वो ट्रोल भी हुई हैं, क्रिटिसाइज भी हुई हैं और साथ साथ पैपराजी के साथ तो उनके खट्टे मीठे रिश्ते से हर कोई वाकिफ है। लेकिन पूरे महाकुंभ पर जया बच्चन का क्या स्टेटमेंट है, आइए आपको बताते हैं। Well, Jaya Bachchan said that the water is most contaminated there as bodies were thrown in the river. Jaya Bachchan asked reporters, where is the water most contaminated right now? It's in Kumbh. Bodies of those who died in the stampede have been thrown in the river because of which the water has been contaminated. It's in Kumbh, the SP MP said, adding that the state government is eye-washing the entire situation and not providing a clear answer. She further alleged that no adequate arrangement has been provided to common or poor people visiting Mahakumbh, whereas VIPs are getting special treatment. The common people visiting Kumbh are not receiving any special treatment. There is no arrangement for them. She further questioned the mass gathering at Mahakumbh and said, they are lying that crores of people have visited the place. How can such a large number of people gather in that place at any given point? जया बच्चन हमेशा से अपने बोल्ड एंड बेबाक स्टेटमेंट्स के लिए जानी जाती हैं और इस बार उन्होंने सीधा सीधा महाकुंभ में चल रहे वीवीआईपी कल्चर की तरफ इशारा किया है और साथ साथ स्टैम्पीड पर भी खुलकर अपना बयान दिया है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए टॉप स्टोरीज में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राखी सावंत की, जो पाकिस्तान की बहू बनने के लिए बेकरार हैं, और वहीं डोडी खान जो उनके फ्रेंड हैं और साथ साथ पाकिस्तानी एक्टर भी हैं। तो वहीं उन्होंने सोशल मीडिया पर राखी सावंत को प्रपोज तो किया ही किया था और ये भी बोला था कि भाई बारात कहाँ लेकर आए, लेकिन फिर उन्होंने अपना प्रपोजल कैंसिल कर दिया और अब राखी सावंत को मिल गया है एक और प्रपोजल। किससे और कहाँ, ये मैं आपको बताती हूँ। Mufti Kavi expressed his desire to marry Indian actress Rakhi Sawant, but with a condition that she must come clean with her previous marriage status. He shared he preferred to keep his past marriage stories private, mentioning that he was once married to a woman from a prominent scholarly, political and literary family of the subcontinent, but she passed away soon after their marriage.
Mufti Kavi said before marrying Rakhi Sawant he would seek his mother's permission. If his mother agrees, he will marry the Indian actress. His statement went viral on social media, sparking amusing comments from social media users. Well, मानना पड़ेगा कि राखी सावंत के चाहने वालों की दरअसल कोई कमी नहीं है और अब तो सरहद पार भी लोग उनसे शादी करने के लिए बेकरार हैं, बेताब हैं। हालांकि अब देखते हैं कि क्या राखी और मुफ्ती कावी की शादी होती है या नहीं। और वैसे तो राखी ने यह भी कहा है कि मैं पाकिस्तान शादी करने गई हूं और हानिया आमिर भी मेरी शादी में शरीक होंगी। तो चलिए टॉप स्टोरीज में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक्टर सैफ अली खान की, जो थे काफी चर्चा में। 16 जनवरी को उन पर हुआ अटैक और स्टैबिंग इंसिडेंट के बाद से सैफ अली खान आ गए सुर्खियों में। और अब एक और बड़ा सवाल उठ रहा है, वो ये कि क्या सैफ अली खान का स्टैबिंग इंसिडेंट था एक पब्लिसिटी स्टंट। ऐसा पहले भी कहा गया था, क्योंकि 6 दिन अस्पताल में रहने के बाद जब वो डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंचे तो कई लोगों ने यह भी बोला कि अरे सैफ तो बिल्कुल फिट एंड फाइन लग रहे हैं। और अब हाल फिलहाल में सैफ ने दी अपनी फर्स्ट पब्लिक स्टेज अपीयरेंस, जब उन्होंने लॉन्च किया अपना नया शो ऑन एन OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है जूल थीफ। और तब भी सैफ के गले पर कुछ बैंडेड्स तो थी, लेकिन तब भी नेटिजन्स यही कह रहे हैं कि क्या सैफ का स्टैबिंग इंसिडेंट था एक पब्लिसिटी स्टंट। और इस बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आइए मैं आपको बताती हूँ। Bollywood actor Saif Ali Khan made his return to the big stage after he was attacked at his home last month. Dressed in an all-denim look, the actor took to the stage to promote his latest movie Jewel Thief: The Red Sun chapter. It feels very nice to be standing here in front of you and it feels very nice to be here, he said at the event, earning cheers from the audience. और अब फैंस का कहना है, for those that questioned Kareena and Saif these past few weeks, here are Saif's latest pictures. Instead of flaunting his injuries, he makes an appearance with a collared shirt. A well-healed laceration at the neck is visible. Saif Ali Khan attending the trailer launch event for his upcoming OTT release Jewel Thief. Was the stabbing incident just a publicity stunt to create hype for the movie? That Saif Ali Khan's incident surely looks like publicity stunt. Now no way one can recover so early from 6 stab wounds. The Saif Ali Khan story seems fake and fabricated. I still don't want to believe this, but I think even the doctors were involved in this facade. It was a publicity stunt for his upcoming movie. After this episode, he has turned into the superhero who protected his family. जो भी हो, सैफ अली खान लग रहे थे काफी अच्छे। हालांकि नेटिजन्स इस बारे में पूरी मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि सैफ की रिकवरी इतनी जल्दी आखिरकार कैसे हो गई। भाई जो भी हो, हमें तो इंतजार रहेगा जूल थीफ का और उसमें सैफ की परफॉर्मेंस कैसी होती है ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शाहरुख खान की, जो हमेशा से अपने विटी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। और अपने बेटे आर्यन खान का डायरेक्टोरियल डेब्यू भी कल उन्होंने किया है अनाउंस थ्रू एन OTT प्लेटफॉर्म, जहां पर शाहरुख खान पूरे डैडी गोल्स निभाते हुए दिखे और विद फैमिली वो वहां पर पहुंचे, विद वाइफ गौरी खान, डॉटर सुहाना खान एंड सन आर्यन खान। और क्या कहा इस आरके ने वहां, आइए आपको बताते हैं। बिलाल हैं, मानव हैं, अंकित हैं, देव हैं और भी 2-4 नाम हैं जो मैं नहीं ले पा रहा हूँ अभी, बट इन सब ने सालों से मेहनत करके ये बनाया है। और मेहनत तभी रंग लाती है जब लोग एंटरटेन हों, क्योंकि अब ये सब कुछ फैमिली में आ गया तो हमारी फैमिली का कर्तव्य है कि हम सिर्फ आप लोगों को एंटरटेन करें। थोड़ा सा ये फैमिली शो ही हो गया, क्योंकि नेटफ्लिक्स मेरी फैमिली जैसी है। इस शो की प्रोड्यूसर गौरी खान है, डायरेक्टर आर्य खान है, रेड चिलीज ने बनाया है, EP बॉनी है, और इन सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। एंड आई होप दिस फैमिली गेट टुगेदर एंटरटेन्स इंडिया। एंड माई ओनली प्रेयर और गुजारिश और बहुत दिल से मैं चाहूँगा कि मेरे बेटे जो अपना पहला कदम रख रहे हैं डायरेक्शन में, मेरी बेटी जो एक्ट्रेस बन रही हैं, उन सबको भी 50% प्यार भी अगर ये दुनिया दे दे जितना मुझे दिया है तो बहुत ज्यादा होगा। Bringing his signature wit to the stage, Shahrukh Khan joked about passing on his sense of humor to Aryan, adding, मेरे जोक्स पे लोग बुरा मान जाते हैं, तकलीफ हो जाती है। मैंने जोक्स करना छोड़ दिया, मैंने ये विरासत अपने बेटे को दे दिया। मैंने कहा जा बेटा बाप का नाम रोशन कर। People often take offense to my jokes, so I have stopped joking. I have passed on this legacy to my son Aryan and told him, go make your father proud. मैं इस शो का प्रोड्यूसर नहीं हूँ, प्रोड्यूसर गौरी हैं, रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स का संगम है। और बॉनी EP हैं, वेंकी मैसूर ने काम किया, ये सब टीम ने किया। मैं ऐसे नाम का प्रोड्यूसर हूँ यार। मेरा क्या बड़ा सिंपल बात है यार, ये सब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोडक्शन नहीं, आई एम जस्ट अ ब्लडी स्टार। अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि शाहरुख खान के बाद क्या उनके बेटे आर्यन खान को भी ऑडियंस उतना पसंद कर पाती है या नहीं। तो चलिए टॉप स्टोरीज के बाद अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है पैब्ड।
और आइए देखते हैं कि जूम के फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स के कैमराज में आज कौन से सेलिब्रिटीज हुए हैं कैप्चर और किसका लुक रहा है सुपर डुपर हिट। मैम थोड़ा पीछे जाए ना, मैम थोड़ा पीछे जाए। यहाँ पे मैम यहाँ पे अनन्या में लास्ट लुक गया। अनन्या जी यहाँ पे रुकिए वेट थोड़ा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नील आप कर रहे हैं क्या हो वो पीछे से मारा इधर मलेगा जी मलेगा मैडम वो फोटोग्राफर भाई रुकिए ना भाई यहाँ पे शाही भाई मेरे कैमरे में शाही भाई थैंक यू बाइसेप्स मेरा जी मैम यहाँ पे रुक जाइए साइड आइए रुक जाए नहीं हुआ पूजा जी ऐसे मत करिए यहाँ पे आगे स्लाइड आगे स्लाइड आता है ना यहाँ सेंटर में सामने में सेंटर में इधर सेंटर भूमि जी यहाँ पे भूमि जी यहाँ पर भूमि सेंटर अर्जुन भाई सेंटर सोनू क्या कर रहा है राहुल सेटिंग दादा तो चलिए पैक्ट के बाद अब वक्त हो गया है हमारे अगले सेगमेंट का जिसका नाम है जूम एक्सक्लूसिव। और आज जूम एक्सक्लूसिव में हमारे साथ जुड़ रही हैं फिल्म मिसेस से सानिया मल्होत्रा और उन्हीं के साथ साथ निशान दहिया और आरती कादव, और ये कर रहे हैं हमसे ढेर सारी बातें और इन्होंने खोले हैं अपने दिल के कई सारे राज हमारे साथ। टेक अ लुक। वेल, दूर से शादी जितनी खूबसूरत लगती है उतनी खूबसूरत तो होती है, लेकिन इट इज ऑल्सो अबाउट मेनी मोर थिंग्स लाइक सिंक का कचरा निकालना, दम पुख्त बिरयानी बनाना, सास ससुर की सेवा करना और गरम गरम फुलके परोसना। और ये चीज़ मैंने तो देख ली है फिल्म मिसेस में, और आज फिल्म मिसेस की स्टार कास्ट एंड डायरेक्टर साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम ऑन जूम। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। सो मैंने फिल्म देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी और बड़े सारे रियल लाइफ इंस्टेंसेस मैंने भी अपनी फैमिली में देखे हैं और वाकई में ऐसा लगा कि हर वो रियल इंस्टेंस हमने पर्दे पर देखा। तो मिस से मिसेस बनने का सफ़र जो आपने इसमें प्ले किया है ऋचा, तो आपको जब ये रोल सुनाया गया, आपने जब इसकी स्क्रिप्ट पढ़ी, तो क्या आप इससे रिलेट कर पाई? आपको लगा कि यार ये तो करना चाहिए? बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि आपने भी अपनी फैमिली में देखा है, मैंने भी अपनी फैमिली में कहीं ना कहीं ऋचा को देखा है, अपनी मम्मा में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी मासी में, अपनी मामी में, मतलब आसपास ही ऐसे इंसिडेंट्स मतलब दिख ही जाते हैं, मतलब जो ऋचा जिस चीज़ों से गुज़र रही है। और मेरे दोस्तों में मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड है हु हैज़ सीन सिमिलर चैलेंजेस एज ऋचा। व्हेन आई हर्ड दिस आई थॉट कि स्क्रिप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। When I read it, I felt like this is a very important story, and as an actor, I'm always looking for such stories to be a part of. So I felt very lucky कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली भी टू बी अ पार्ट ऑफ मिसेस। और ऋचा से कई लोग कनेक्ट भी कर पाएंगे, बहुत सारी लड़कियां डेफिनेटली कनेक्ट करेंगी। बिल्कुल, और कर भी रही हैं। यस। एंड कमिंग टू यू निशांत, आप इसमें हस्बैंड बने हैं। जितनी आपकी वाइफ सेल्फलेस हैं उतनी आप थोड़े से नॉट सो सेल्फलेस हैं। सो क्या ऐसी चीज़ें लगी जो आपको लगा कि यार ये हस्बैंड्स में नहीं होनी चाहिए, जो आपने भी हमेशा कहीं ना कहीं देखी हैं अपने आसपास? आई थिंक ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं, बट मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा ताकि कुछ हस्बैंड्स खुद भी हमारी पिक्चर देखें और फिर खुद रियलाइज़ भी करें कि क्या क्या होना चाहिए या क्या क्या नहीं होना चाहिए। पर हाँ, आई थिंक हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग और एक क्वालिटी है जो सुनने की और दूसरे को समझने की। आई थिंक वो हस्बैंड्स में पक्का होनी चाहिए। इनफैक्ट हस्बैंड्स वाइफ्स जो भी, आई मीन आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट अ जेंडर थिंग राइट नाउ सेइंग कि ये सिर्फ यही करते हैं या वो ही करते हैं,
आई मीन एज अ कपल आई थिंक सब में होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का हमने फिल्म में भी बहुत जिक्र किया है, थोड़ा आई थिंक वो हमारी कंडीशनिंग पर है। क्या आप कि गरम फुल्के बनवाएंगे अपनी पार्टनर से? नहीं, मैं तो कभी मैं इतना शौकीन नहीं रहा हूँ गरम फुल्कों का, सही में बोलूँ तो। मेरे को छोटे से ही मैं बहुत स्पोर्ट्स खेलता था, तो बहुत ट्रैवल किया हूँ मैं। और स्कूल्स में जाके सोते थे हम, क्योंकि हमारा अरेंजमेंट जो छोटे बच्चों का होता है, अंडर 13 अंडर 15 स्कूल्स के लिए खेल रहा हूँ, तो कोई होटल्स नहीं होते हैं उसमें, जो जनरली गर्मियों की छुट्टियों में होता है। और उस टाइम पर जो स्कूल्स खाली होते हैं उनके क्लासरूम में ही नीचे दरी बिछा दी जाती है और 20-20 लोग सो रहे होते हैं, तो उसमें खाना भी मिलता है, तो जाओ ले लो, लंगर टाइप सा होता है। तो तुम लेट आओगे तो रोटी कोई गरम गरम बना के देता नहीं है, तो मुझे शुरू से कोई गरम फुल्कों कोई शौक ही नहीं है। और ये खुद भी खाना अच्छा बनाते हैं। हाँ, मैं खुद बना लेता हूँ अपने लिए, लेकिन जैसे मेरी मॉम भी हैं, कभी मेरे लिए वेट भी करती है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे लिए वेट मत किया करो यार, मेरी रोटी आप बना के रखो, आप जब भी बना रहे थे बना देना, मैं खा लूंगा। Well, that's it for today. I hope आपको आज के Zoom लाइव शो के सभी सेगमेंट्स आए होंगे बेहद पसंद। और इसी के साथ साथ Zoom के YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, and do hit the bell icon to never miss an update. Well, this is me Neha Bajaj signing off, and I'll see you in another episode of Zoom Live Show, entertainment का ultimate dose.